Hello students, welcome to the class. Today we are going to learn our chapter number 3, part 2, the black aeroplane. The chapter is about one pilot who want to reach to his family as soon as possible, but he made the storm in his way, and how he came out from the storm and reached to his goal, I mean at the station or at his to his family. That is the story. And some of the question at the end of which is remain still in his mind. So now we start the story. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryyard. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I look at my watch, 1:30 in the morning. Here in the first paragraph, you can see a beautiful description of aeroplane and the atmosphere around the aeroplane. So here it's the scene of night. It was a very clear sky and the moon was shining behind the pilot. I mean the aeroplane. So यहाँ पर उसने देखा है The moon was coming up in the east, यानी कि moon यहाँ से निकल रहा है behind him, and the star was shining up. Stars भी यहाँ पर दिखने लगे. It means रात हो गई है. It was there wasn't any cloud, यानी कि यहाँ पर कोई अभी तक कोई भी एक भी जो स्काई में क्लाउड यानी कि बादल अभी कहीं भी नहीं दिख रहा. It means the sky was very क्लियर. तो उसको बहुत ही दिमाग में वो खुश हो रहा है कि स्काई बहुत ही क्लियर है, तो मैं जल्द से जल्द अपनी फैमिली के पास पहुंच जाऊंगा. और खुशी इस बात की है वो इतनी हाइट पर भी होते हुए इतनी क्लियर स्काई में वो अपनी उड़ान भर रहा है, वो भी अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन में. तो उसकी भी उससे बहुत ही खुशी है. बट उसको ये भी है कि आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा, एक तो ये, और दूसरी बात की खुशी ये है कि आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे. अपनी हॉलीडेज वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है. इसकी वजह से वो जल्द से जल्द ही अपनी फैमिली के पास पहुंचना चाहता है. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन. आई सॉ द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल, Dakota DS 088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. The voice from the radio answered me immediately. DS 088, I can hear you. You ought to turn 12-degree west now. DS 088, over. See, यहाँ पर जब बात खत्म होती है तब ओवर बोला जाता है ताकि सामने वाले को पता चले कि जो बोलने वाले की बात है वो खत्म हो गई है. नाउ द टर्न उसकी टर्न है बोलने की, तो उसको शुरू करनी है. सो दैट इज द वे कि वो लोग कैसे अपना मैसेज जो है वो रेडियो तक पहुंचाते हैं. एंड रेडियो इमीडिएटली आंसर टू हिम. I checked the map and the compass, switched over to my second and the last future, and turned the Dakota 12-degree west towards England. अब यहाँ पर उन्होंने 12-degree west अपने जो Dakota प्लेन है उसको टर्न कर दिया है to reach as soon as reach to the England. I'll be in time for breakfast. I thought a good bit English breakfast. Everything was going well. It was a easy flight. यहाँ पर अब तक सब कुछ उसे नॉर्मल रख रहा है और बहुत ही वो खुश है क्योंकि अपनी फैमिली के पास उसे जल्द से जल्द अपने हॉलीडे स्पेंड करने के लिए उसकी फैमिली के पास उसे जल्द से जल्द पहुंचना है. Another thing was यहाँ पर उसने अपने एक गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट की बात की है. गुड ब्रेकफास्ट इसलिए है क्योंकि वो अपनी उस ब्रेकफास्ट को अपनी फैमिली के साथ करने वाला है. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like a black mountain standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them, to the north or south. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. यहाँ से पेरिस 115 किलोमीटर दूर था. एंड सडनली उसको स्काई यानी कि बादल दिखने लगे जो बहुत ही ब्लैक थे. इट मीन्स देयर वाज अ स्टॉर्म,
यानी कि यहाँ पर से स्टॉर्म की शुरुआत हो रही है। तो इस स्टॉर्म के जो थोड़े से लक्षण है वो यहाँ पर उसे दिख रहे थे। द ब्लैक माउंटेन, ब्लैक क्लाउड्स लुक लाइक अ माउंटेन, यहाँ पर उसको जो क्लाउड्स है उसको बोला गया है लाइक अ बिग माउंटेन। ब्लैक माउंटेन की एक जैसे सडनली आपके सामने कोई एक बड़ा सा ब्लैक माउंटेन आकर खड़ा हो जाए एंड यू फील शॉक्ड, तो ऐसी फीलिंग अब यहाँ पर उसे आ रही है जैसे उसके सामने अचानक से बड़े बड़े जो पहाड़ हैं वो उसके सामने आकर खड़े रह गए हैं। बट उसको अभी ये भी फीलिंग आ रही है कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं वापस भी मुड़ सकता हूँ। बट आई वॉन्टेड टू रीच टू माई फैमिली, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है, अपने घर पर भी जाना है। I'll take the risk. I thought and flew that old Dakota straight into the storm. अब उसे ये भी फीलिंग हुई तो फिर मुझे अगर घर पहुंचना है तो मुझे ये रिस्क उठाना ही चाहिए। एंड ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द स्टॉर्म, अब वो स्टॉर्म के अंदर जा रहा है और ये रिस्क उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली तक पहुंचने के लिए ही उठाया है। Inside the clouds everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. अब जैसे ही वो स्टॉर्म के अंदर, उस ब्लैक क्लाउड्स के अंदर जैसे ही वो जाता है, सडनली उससे कुछ दिखाई नहीं देता है। आसपास की जितनी भी एटमॉस्फेयर, उससे सारी चीजें वो ब्लैक दिख रही है। देयर वाज अ स्टॉर्म, तो यू कैन फील, यू कैन इमेजिन दैट हाउ द एटमॉस्फेयर वाज ऑन दैट टाइम। सारी चीजें ब्लैक कलर, इट मीन्स द डार्क साइड वाज देयर। सो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है और सडनली ही फील कि उसका जो ओल्ड एरोप्लेन है थोड़ा सा पुराना है, सो इट तो वो जंप कर रहा है। एंड सडनली वो उसे लग रहा है कि शायद कुछ अजीब सा हो रहा है। इसकी वजह से वो उस जो कंपास, जो सारे इंस्ट्रूमेंट उसकी प्लेन में लगे हुए होते हैं, जिसके कंपास वो दिशाएं देखने के लिए और कितने डिग्री आपको वेस्ट, ईस्ट या कोई भी डायरेक्शन में आपको कैसे टर्न करना है, सो इन चीज़ों से वो लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं और अपने प्लेन को उस दिशा में वो चला सकते हैं। तो फॉर दैट रीजन वो कंपास की तरफ देख रहा है। बट सडनली ही सो एंड वेरी शॉक्ड बाय सीइंग द कंपास कि वो उसकी जो चाबी वो गोल गोल घूमती ही जा रही है। एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेर ऑल्सो डेड, और उसके साथ साथ दूसरे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वो लगे थे वो सारे भी अब यहाँ पर डेड हो चुके हैं। उसे लग रहा है कि अब मुझे अपने रेडियो जो है वहां पर मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, बट क्या हो रहा है, वहां पर भी कांटेक्ट होना पॉसिबल नहीं है। पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर। द रेडियो वाज डेड टू। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then, in the black cloud, quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Follow me, he was saying. Follow me. He knows that I am lost. I thought he's trying to help me. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. अब suddenly सारी चीजें डेड हो चुकी है। उसने रेडियो में भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट there wasn't any reply. It means radio भी dead हो चुका था। Suddenly in the black clouds, black stormy atmosphere, he see another aeroplane. एक और एरोप्लेन उसकी नजर में आता है। It means उसने देखा कि एक और एरोप्लेन है जिसमें वो उसके पायलट को भी देख सकता है। And he see that कि वो उसे वहां से वेविंग मीन्स हाथ हिलाकर हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। एंड ही वाज आल्सो टेलिंग हिम टू फॉलो हिम, उसे फॉलो करने के लिए भी वो बोल रहा है। इट मीन्स उसे यहाँ पर एक आशा की किरण दिखाई देती है कि चलो मेरे साथ, मुझे फॉलो करो। इट मीन्स वो कहीं ना कहीं अच्छी डायरेक्शन में जाएगा और वो वहां से अपने आप को सेव भी कर सकेगा फ्रॉम दिस स्टॉर्म।
So he suddenly followed him without thinking about anything. कुछ भी सोचे समझे बिना वो उसे फॉलो करने लगा, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक अज्ञाकित बालक की तरह वो उसे फॉलो करने लगा। तो क्योंकि यहाँ पर उसके पास सिचुएशन ही ऐसी थी, इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. अब मेरे फ्यूल टैंक जो उस एरोप्लेन, जो ये ओल्ड डकोटा प्लेन का जो लास्ट फ्यूल टैंक था, उसमें कुछ ही फ्यूल बचा था, सिर्फ 5 से 10 मिनट जितना वो चल सके। तो इसकी वजह से उसके दिमाग में बहुत ही घबराहट हो रही थी, पर फिर भी उसे जैसे ही वो एरोप्लेन दिख रहा था, वो उसको धीरे धीरे फॉलो करते हुए जा रहा था। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight line of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see anywhere. Suddenly क्या होता है, जैसे उसके पीछे पीछे वो फॉलो करते जा रहे हैं, उसे सडनली 2 लाइन्स दिख रही है। इट वॉज अ एयरपोर्ट एंड ही फील्स वेरी सेफ, जैसे उसके अंदर जान आ गई हो वापस, राइट? यहाँ पर उसकी जान बच गई थी, इट मीन्स उसको जैसे दोबारा जीवन मिला है। तो इतनी खुशी वो फील कर रहा था और वो वहां पर एयरपोर्ट पहुंच चुका था। एट दिस मोमेंट ही फील कि वो अपने फ्रेंड को, जैसे ही वो लैंड कर लेता है, उसके बाद उसको लग रहा है कि इस फ्रेंड को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए फॉर हेल्पिंग हिंट्स। इस हेल्प की वजह से वो थैंक करने के लिए जैसे ही पीछे मुड़कर देख रहा है, तो देयर वाज अ क्लियर स्काई, एक क्लियर स्काई है, वहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा उसे, राइट? आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane? Up there in this storm? No other aeroplane were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. अब यहाँ पर वो जैसे ही रडार के अंदर एंटर होता है, he wants to thank the man who helped him. जैसे ही वो वहां पर एक लेडी से बात करता है और पूछता है कि जो दूसरा एरोप्लेन था उसके अंदर पायलट कौन था, आई वॉन्ट टू थैंक हिम। बट जो लेडी है, शी लुक्ड हिम वेरी स्ट्रेंजली, वो बहुत ही अजीब तरीके से उसके सामने देखती है और बताती है कि हमने तो रडार में आपके अलावा कोई और एरोप्लेन देखा ही नहीं, और वो भी इस स्टॉर्म के अंदर। देयर वाज़न्ट पॉसिबल, क्योंकि आपके अलावा यहाँ पर कोई और एरोप्लेन था ही नहीं। रडार इट्स अ न्यू वर्ड. रडार इट्स एन मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच दे कैन, उन लोगों को ये पता चलता है कि एरोप्लेन है या कोई हेलीकॉप्टर है, जो किसकी उड़ान कहाँ से भरी है उन्होंने, और कितने एरोप्लेन या फिर कोई हेलीकॉप्टर अगर है तो उन लोगों को थ्रू द रडार ये मैसेज मिलता रहता है. तो इट्स अ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू दिस. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? So at the end of the chapter, there are a lot of questions in his mind which remains still, because उसके दिमाग में ये चल रहा है कि without compass, without any फ्यूल, थोड़ा सा भी फ्यूल उसके पास नहीं बचा था. कंपास, सारे इंस्ट्रूमेंट जब डेड हो चुके थे, ऐसी कंडीशन में कौन था जिसने मुझे बचाया? सो द क्वेश्चन स्टिल रिमेन एट द एंड ऑफ द चैप्टर. सो आई होप यू लाइक द चैप्टर and understand the chapter very well. If you want to learn the chapter very well, you can repeat the video twice. Well, thank you.